we'll discuss methods of preparation of ethers. We know that ethers are a class of organic compounds having containing ethereal oxygen as the functional group. So how these are prepared in the laboratory, here we'll discuss two important methods by which these ethers are prepared in the laboratory. Number one, by dehydration of alcohols. By dehydration of alcohols. Alcohols, they undergo dehydration, that means loss of water, in presence of protic acids like H2SO4 or H3PO4 under suitable conditions. For example, I will take here alcohol. This is alcohol CH3, CH2, this is OH. I will take two molecules plus. So in presence of H2SO4, I will put a condition 413 Kelvin temperature. So the resulting product is here CH3, CH2, OCH2, CH3. So this was ethanol. So it undergoes dehydration plus H2O. So we got the product here. This is ethoxy ethane. इथॉक्सीथेन मिलेगा. अब जो ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर जो है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, इट इज SN2. ये SN2 है. SN2 that means it is this is SN2, that means nucleophilic solution bimolecular reaction है ये. So this reaction involves the attack of the alcohol molecule on a protonated alcohol molecule. Attack of alcohol molecule on protonated alcohol molecule. So this is protonated alcohol molecule. CH2, this ये ethanol है plus H positive. ये आएगा एसिड से, प्रोटिक एसिड से. So यहाँ पर ये इसके साथ मिलेगा, इसको हो जाएगा प्रोटोनेशन. So we'll get protonated alcohol CH3, CH2. This is OH, H. This is positive. This is protonated alcohol molecule. ये protonated alcohol है. Protonated alcohol. अब इसको, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को करेगा सिंपल अल्कोहल मोलेक्यूल, उसको अटैक करेगा as a nucleophile. So this is CH3, CH2, OH, H positive. So this alcohol molecule attack this carbon because this carbon has slightly positive charge. And ये जब उसको अटैक करेगा तो ये बॉन्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री हो जाएगा. So we'll get, हमें यहाँ पे मिलेगा CH3, CH2, OH. इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले H पे CH2, और यहाँ से मिलेगा इसका CH2, CH3, और यहाँ से लॉस हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. सो ये लॉस हो गया यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल. अब इस वाले जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल है, नाउ दिस इज ये यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बन गया ये वाला. नाउ दिस विल अंडरगो डिप्रोटोनेशन. इसको फिर हो जाएगा डिप्रोटोनेशन. यहाँ पर इसका मतलब है दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे to neutralize the positive charge. So we'll get CH3, CH2O, CH2, CH3 प्लस यहाँ निकलेगा प्रोटॉन. So this is ether. ये ether है. So यहाँ पर जो रिएक्शन है, this is SN2. ये इन्वॉल्व करती है. ये एक्चुअली रिएक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, this is from alcohol, this is SN2. It follows SN2 mechanism. That is nucleophilic solution bimolecular. अब यहाँ पर दिस मेथड जो हमने ये मेथड पढ़ा ना, एक्चुअली suitable for preparation of ethers. यानी इसमें से हम इस suitable मेथड है for preparation of ethers
हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, जिनके पास सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स होंगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स शुड बी अनहिंडर्ड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स अनहिंडर्ड होने चाहिए, वहां पर कोई स्टील हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, एंड द टेम्परेचर इज केप्ट लो, और टेम्परेचर लो होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा वहां पर, अगर वहां पर अनहिंडर्ड नहीं होंगे अल्काइल ग्रुप्स और टेम्परेचर लो नहीं होगा, वहां पर द रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, वहां फिर बनेगा अल्कीन, इथर नहीं बनेगा, अल्कीन बनेगा फिर वहां पर। सो दिस वाज अबाउट dehydration of alcohols. Now we'll discuss second method, that is Williamson synthesis. Williamson synthesis. विलियमसन एक साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट का नाम है। उसने इथर्स को सिंथेसाइज कर दिया। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ये रिएक्शन जो है विलियमसन सिंथेसिस, this is the reaction by which we can prepare both symmetrical as well as unsymmetrical alkenes। हम इसमें से symmetrical बना सकते हैं और हम बना सकते हैं unsymmetrical unsymmetrical भी और unsymmetrical ethers हम बना सकते हैं इस मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ट्रीट अल्काइल हैलाइड को हम करते हैं ट्रीट विथ सोडियम अल्कोसाइड या अल्कोक्साइड या अल्कोसाइड, हम इसको पढ़ते हैं। दिस इट इज हियर, ये यहाँ पर एक्ट करती है एज बेस, यानी अल्काइल हैलाइड को हम करते हैं ट्रीट विद सोडियम अल्कोसाइड, इन सोडियम अल्कोसाइड लाइक दिस। जनरल रिएक्शन हम लिखेंगे, दिस इज RX, ये अल्काइल हैलाइड है, दिस अल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड है, इट में भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह। X से यहाँ पर हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह। दिस इज R-ONA, दिस इज सोडियम अल्कोसाइड, दिस इज सोडियम अल्कोसाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है जनरल फार्मूला। we'll get this, we'll get R dash plus and ये so this is ether, ये ether है, ये ether है। we'll take now example, हम एक example यहाँ पर लेंगे अब। if I take CH3Br, this is methyl bromide, plus we'll take CH2,3CH2ONA, this is सोडियम ethoxide, ये सोडियम ethoxide है, ये ब्रोमोमीथेन है, ये सोडियम ethoxide है, ethoxide। we'll get here, this is CH3O, CH2, CH3, this is ether, this is ethyl methyl ether, yeah, this is methoxyethane, ये methoxyethane है, प्लस सोडियम ब्रोमाइड, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड। अब जो यहाँ पर जो इथेन जो है, सॉरी इथर्स कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप्स, अगर सबस्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप्स होंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल वी हैव सेकेंडरी टर्शियरी, इससे हम वो भी बना सकते हैं, यानी इथर्स हम बना सकते हैं कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप्स सेकेंडरी और टर्शियरी, वो भी हम इस मेथड से बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है इट आल्सो इन्वॉल्व्स SN2, ये भी SN2 SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मालिक्यूलर। यहाँ पर अटैक ऑफ अल्कोसाइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर अटैक करता है SN2 में, यहाँ पर SN2 में अटैक करता है दिस अल्कोसाइड आयन करती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे, यहाँ पर अटैक, सो लाइक दिस। यहाँ पर अगर नहीं है, दिस इज CH3
CH3, CH3. This is सोडियम बुटॉक्साइड है ये, प्लस CH3Br। यहाँ पर अटैक करेगा ये इस कार्बन पे और ये ब्रोमीन जाएगा along with the electron pair, so we'll get this compound CH3C, CH3, CH3, this is OCH3 plus NaBr। so ये बन गया यहाँ पर ईथर, ये ईथर बन गया यहाँ पर। अब इनके सब सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हाइड्स, अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हाइड्स होंगे, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हाइड्स होंगे, यहाँ पर हमने ये प्राइमरी अल्काइल हाइड लिया, ये प्राइमरी अल्काइल हाइड था। अगर सेकेंडरी होंगे या टर्शरी अल्काइल होंगे, उस वक्त क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो दैट विल कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी उस वक्त एलिमिनेशन रिएक्शन करेगी कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, वहां पर एलिमिनेशन करेगी कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। इफ विल टेक सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हाइड्स इन प्लेस ऑफ प्राइमरी, सो इफ ए टर्शियरी अल्काइल हाइड इज यूज्ड, अगर हम करेंगे टर्शियरी अल्काइल हाइड यूज, वहां पर जो अगर हम करेंगे टर्शियरी अल्काइल हाइड यूज, यानी टर्शियरी अल्काइल हाइड यूज करेंगे, वहां पर बनेगा इज यूज्ड अल्कीन, वहां पर बनेगा, यानी अल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट, वहां पर ईथर नहीं बनेगा, वहां पर अल्कीन बनेगा, अल्कीन विल गेट फॉर्मड देयर, वहां पर अल्कीन बनेगा एज अ प्रोडक्ट लाइक दिस। इन केस ऑफ अगर हम लेंगे टर्शियरी, if I take this CH3O and this is positive, sorry, this is negative, this is sodium methoxide, या अगर हम लेंगे CH3CH, CH3C, CH3, this is Br, this is tertiary butyl bromide है ये tertiary alkyl halide है, tertiary butyl bromide। यहाँ पर ये यहाँ पर एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर बनेगा हमें अल्कीन CH3C, CH2 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 CH3 1 2 3 4 1 2 3 this is 2-methyl propene पड़ेगा यहाँ पर 2-methyl propene 1 2 3, you get 2-methyl 1 2 3 1 2 3, ये 2-methyl propene है, 2-methyl propene बनेगा यहाँ पे, that means अल्कीन, यहाँ पर इथर नहीं बनेगा, यहाँ पर अल्कीन बनेगा। सो अगर हम इसका मतलब है, अगर हम टर्शियरी लेंगे वहां पर हमें इथर नहीं बनेगा, वहां पर बनेगा अल्कीन। व्हाई दिस, ये क्यों होता है, इसका सिंपल रीजन यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज जो अल्कोसाइड होता है यहाँ पर, अल्कोसाइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, ये सिर्फ एक्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं करता, इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अल्कोसाइड्स आर नॉट एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल्स, ओनली न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग बेसेस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है अल्कोसाइड्स। सो यहाँ पर क्या होता है, दे रिएक्ट विद अल्काइल हाइड्स, ये रिएक्ट होते हैं अल्काइल हाइड्स से, लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी व्हेन ये एक्ट करते हैं एज बेस, फिर ये अल्काइल हाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। जब एलिमिनेशन होती है तो वही गेट हमें मिलता है अल्कीन। सो यहाँ पर कंपीट करती है एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर एक्ट करती है एज बेस, वहां पर करता था एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर करता है एक्ट एज ए बेस। यहाँ पर एलिमिनेशन है वो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम, इस विलियमसन सिंथेसिस से हम और एक चीज हम बना सकते हैं यहाँ पर, यानी एरोमेटिक ईथर भी हम बना सकते हैं। एरोमेटिक ईथर, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक फिनॉल
ये फिनॉक्साइड है, सॉरी ये फिनॉक्साइड है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, एंड आई विल टेक अल्काइल हैलाइड CH3Br, ये अल्काइल हैलाइड है। यानी बिल्कुल सेम, यानी विल टेक इन प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोसाइड आई विल टेक फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल यानी मिथाइल ब्रोमाइड है ये। सो सिंपल, ये इसके साथ अटैक करेगा, ये उसको करेगा अटैक यहाँ पर ये, एंड विल दिस ब्रोमीन विल लीव along with the electron pair, so the product will be is OCH3 plus NaBr. This is methoxybenzene है ये methoxybenzene है। एक तो ये एरोमेटिक ईथर भी है, दूसरा ये अनसिमेट्रिकल ईथर भी है, या ये मिक्स्ड ईथर भी है, ये मिक्स्ड ईथर भी है। So we can also prepare aromatic ethers by this Williamson synthesis. So this was about methods of preparation of ethers. Okay.